Good morning, dear students. Welcome back to the DPS online English class for 11th grade. In the last classes, we have completed the chapter first, patriotism. Today, we will go for the chapter second, What the Moon Saw, written by Hans Christian Andersen. So, at very beginning, we will go for the introduction of the writer H.C. Andersen. Hans Christian Andersen was born on 2nd April 1805 and passed away in the year 4th August 1875. He was born in Denmark. He is called as H.C. Andersen वाज ए दानिश राइटर. दानिश राइटर का मतलब होता है जो डेनमार्क से बिलोंग करता है. इट इज़ वेरी सिमिलर लाइक स्कॉटिश राइटर. स्कॉटिश राइटर मीन्स वन हु बिलोंग्स टू स्कॉटलैंड. ही वाज ए प्रोलिफिक राइटर ऑफ प्लेस. प्रोलिफिक मीन्स फ्रूटफुल. And he is famous for travelogues, novels and poems. Travelogues means writings related to the travelings. He is best remembered for his fairy tales. Our chapter What the Moon Saw, it is also a fairy tale. So he is also called a fairy tale writer. Andersen's fairy tales consisting 156 fairy tales, short stories, and all these stories were published in 9 volumes in different languages. These stories were published in more than 125 languages. Some of the famous fairy tales or stories includes The Emperor's New Clothes, The Little Mermaid, The Nightingale, The Steadfast Tin Soldier, The Red Shoes, and 2 more famous which is included in our chapter, The Ugly Duckling and The Little Match Girl. His stories have inspired ballads, plays, and animated and live action films. He became very famous among the children. What the Moon Saw, it is a story, consists 2 parts. It is a fairy tale टोल्ड थ्रू ए पेंटर. ये एक परियों की कहानी है जो कि एक पेंटर के द्वारा कही गई है. इट नरेट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ 2 चार्मिंग सीन्स. ये 2 जो चार्मिंग सीन्स है उनका डिस्क्रिप्शन करती है. व्हाट द मून सो ऑन सक्सेसिव इवनिंग्स. जो मून है उसने सक्सेसिव मतलब एक के बाद में दूसरी रात में जो देखा है उसका डिस्क्रिप्शन है. इंट्रोडक्शन. It is a strange thing that when I feel most fervently and most deeply, लेखक कहते हैं कि बहुत अजीब बात है जब मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक और बहुत गहरी भावनाओं से भरा हुआ महसूस कर रहा था. My hands and my tongue seem alike tied. ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मेरे हाथ और मेरी जीवा एक साथ बंध गए हों. So that I cannot rightly describe or accurately portray the thoughts that are rising within me, जिसकी वजह से मैं ठीक ठीक वर्णन नहीं कर सकता या फिर ठीक तरह से चित्रण नहीं कर सकता उन विचारों का जो मेरे अंदर उत्पन्न हो रहे हैं. एंड येट आई एम अ पेंटर. चूंकि मैं एक पेंटर हूं, माई आई टेल्स मी एज मच एज दैट. मेरी आंखें मुझे उतना बताती हैं. And all my friends who have seen my sketches and fancy say the same. जितना मेरे मित्रों ने मेरे स्केचेस को देखकर या मेरी काल्पनिक कहानियों को सुनकर कहा है. I am a poor lad. Lad means होता है बॉय, लड़का. लेखक कहते हैं क्योंकि मैं एक पुअर बॉय यानी गरीब लड़का हूं and live in one of the narrowest of lane और एक सबसे सकरी गली में रहता हूं. But I do not want of light. लेकिन वहां मुझे प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती. As my room is high up in the house, क्योंकि मेरा कमरा मकान में सबसे ऊंचाई पर है, with an extensive prospect over the neighboring roofs, जहां से मुझे पड़ोसियों की छत से ऊपर भी सारी चीजें, सारे दृश्य भली भांति दिखाई देते हैं. During the first few days, शुरुआत के कुछ दिनों, I went to live in the town. जब मैं कस्बे में रहने के लिए गया, I felt low spirited and solitary enough. तो लेखक कहते हैं कि वो बहुत लो स्पिरिटेड यानी निराश, सॉलिटरी यानी अकेला,
वो कहते हैं कि मैं बहुत लो स्पिरिटेड यानी बहुत निराश और बहुत अकेला महसूस करता था। इंस्टेड ऑफ द फॉरेस्ट एंड द हिल्स, ग्रीन हिल्स ऑफ फॉर्मर डेज, और मैं याद करता था उन वनों को, उन हरी भरी पहाड़ियों को पुराने दिनों की, यानी अपने गांव की। आई हैड हियर ओनली अ फॉरेस्ट ऑफ चिमनी पॉट्स टू लुक आउट अपॉन। यहां पर उन्हें बाहर देखकर सिर्फ चिमनी पॉट्स के जंगल ही दिखाई देते। एंड देन आई हैड नॉट अ सिंगल फ्रेंड, और यहां पर मेरा कोई एकमात्र मित्र भी नहीं है। नॉट वन फेमिलियर फेस ग्रीटेड मी, एक भी फेमिलियर यानी परिचित चेहरा मेरा अभिवादन नहीं करता है। So one evening I sat at the window in a desponding mood. लेखक कहते हैं एक शाम मैं, डेस्पॉन्डिंग मतलब होता है निराशा भरे मूड में अपनी विंडो यानी अपनी खिड़की पर बैठा हुआ था। एंड प्रेजेंटली आई ओपन द कैसमेंट एंड लुक्ड आउट, तभी मैंने अपनी खिड़की को खोला और बाहर की तरफ देखा। ओ हाउ माई हार्ट लीप्ड अप विद जॉय, वो कहते हैं मेरा हृदय खुशी से उछल पड़ा। हियर वॉज अ वेल नोन फेस एट लास्ट, आखिरकार उन्हें एक परिचित चेहरा दिखाई दिया। ए राउंड, एक गोल, फ्रेंडली काउंटेनेंस, काउंटेनेंस मतलब होता है फेस एक्सप्रेशन, एक परिचित मित्रवत फेस एक्सप्रेशन वाला चेहरा। द फेस ऑफ अ गुड फ्रेंड, और वो चेहरा था एक अच्छे मित्र का। आई हैड नोन एट होम, जिसे मैं अपने घर से जानता हूं, यानी अपने गांव से जिससे मेरा परिचय हुआ। इन फैक्ट इट वॉज द मून, और वो चेहरा है चांद का। दैट लुक्ड इन अपॉन मी, जो मेरे ऊपर से देख रहा है। ही वॉज क्वाइट अनचेंज्ड, वो अभी भी नहीं बदला। द डियर ओल्ड मून, वही पुराना प्रिय चांद। एंड हैड द सेम फेस एग्जैक्टली, उसका चेहरा अभी भी वैसा ही है। दैट ही यूज्ड टू शो, जैसा वो मुझे दिखाया करता था। When he peered down upon me through the willow trees on the moor, जब वो मुझे, पीर करना मतलब होता है झांकना, जब वो मुझे झांका करता था झाड़ियों के बीच से। ऑन द मूर, मूर मतलब होता है उजाड़ भूमि, और विलो मतलब होती हैं झाड़ियां। जब वो मुझे एक उजाड़ भूमि में झाड़ियों के बीच से झांका करता था। आई किस्ड माई हैंड टू हिम ओवर एंड ओवर अगेन एज ही शॉन फार इन टू माई लिटिल रूम, जैसा कि वो दूरी पर मेरे कमरे में अपनी रोशनी बिखेर रहा था। मैं अपने हाथ को चूमता और बार बार उसका अभिवादन करता। फॉर हिज पार्ट promised me that every evening when he came abroad he would look in upon me for a few moments, और चांद अपनी तरफ से प्रॉमिस करता कि हर शाम जब भी वो अब्रॉड यहाँ पर यूज किया गया है टाउन के लिए, इस कस्बे में आएगा, वह कुछ समय के लिए मुझसे मिलने जरूर आएगा। दिस प्रॉमिस ही हैज फेथफुली केप्ट, अपने इस प्रॉमिस को उसने विश्वास के साथ निभाया। इट इज अ पिटी दैट ही कैन ओनली स्टे सच अ शॉर्ट टाइम व्हेन ही कम्स, लेकिन दयनीय बात यह है कि वह कुछ ही समय के लिए मेरे साथ रुक पाता था। वेन एवर ही अपीयर्स, जब कभी वो दिखाई देता, ही टेल्स मी ऑफ वन थिंग और अनदर, तो वो मुझे एक या दूसरी कोई ना कोई बात बताता। दैट ही हैज सीन ऑन द प्रीवियस नाइट, जो कुछ उसने पिछली रात को देखा, और ऑन दैट सेम इवनिंग, या जो भी वो इस शाम को देख कर आया। जस्ट पेंट द सीन आई डिस्क्राइब टू यू, दिस इज वॉट ही सेड टू मी, और वो मुझसे केवल यही कहता कि पेंट करो जो कुछ मैं वर्णन करता हूं। एंड यू विल हैव अ वेरी प्रिटी पिक्चर बुक, और तुम्हारे पास एक बहुत ही सुंदर पिक्चर बुक बनकर तैयार हो जाएगी। आई हैव फॉलोड हिज इंजेक्शन फॉर मेनी इवनिंग्स, कई शामों तक मैंने उसके इंजेक्शन मतलब होता है आदेश, कई शामों तक मैंने उसके आदेशों का पालन किया। आई कुड मेक अप अ न्यू 1001 नाइट्स इन माई ओन वे, लेखक कहते हैं मैं अपनी खुद की 1001 नाइट्स बनाकर तैयार कर सकता था आउट ऑफ दीज पिक्चर्स, इन पिक्चर्स की सहायता से। 1001 नाइट एक स्टोरी कलेक्शन बुक है जिसमें अरेबियन स्टोरीज का कलेक्शन है। तो लेखक कहते हैं कि चांद की कहानियों का वर्णन सुन के उन्हें लग रहा था कि वो एक और 1001 नाइट्स जैसी किताब बनाकर तैयार कर देंगे अपने ही तरीके से, अपनी इन पिक्चर्स से। बट द नंबर माइट बी टू ग्रेट आफ्टर ऑल,
हालांकि ये संख्या बहुत बड़ी है। द पिक्चर्स आई हैव हियर गिवन, जो पिक्चर्स यहाँ पर दर्शाई गई हैं, हैव नॉट बीन चूजन एट रैंडम, वो किसी उद्देश्य से नहीं चुनी गई हैं, बट फॉलो इन देयर प्रॉपर ऑर्डर, बल्कि जिस ऑर्डर में इन पिक्चर्स को रखा गया था उसी ऑर्डर से शुरुआत की 2 कहानियों को चुना गया है। जस्ट एज दे वर डिस्क्राइब टू मी, जैसा उनका वर्णन मुझे किया गया चांद के द्वारा। सम ग्रेट गिफ्टेड पेंटर और सम पोएट और म्यूजिशियन, कुछ ग्रेट गिफ्टेड पेंटर होंगे, गॉड गिफ्टेड, और कुछ अच्छे कवि हो सकते हैं, म्यूजिशियन संगीतकार हो सकते हैं, मे मेक समथिंग मोर ऑफ देम इफ ही लाइक्स, वो इनसे कुछ और बेहतर कर सकते हैं यदि वो चाहें तो। What I have given here are only hasty sketches, मैंने तो यहाँ केवल जल्दी में बनाए हुए स्केचेस ही दिए हैं, hurriedly put upon the paper, जो जल्दबाजी में पेपर ऊपर उतारे गए, with some of my own thoughts interspersed, जिसमें मैंने खुद के कुछ थॉट इंटरस्प्रेस्ड किए। इंटरस्प्रेस्ड करना मतलब होता है मिक्स करना, मिलाना, यानी चांद के द्वारा वर्णन की गई कहानियों में कुछ कहानियां लेखक ने खुद इंक्लूड की हैं। फॉर द मून डिड नॉट कम टू मी एवरी इवनिंग, क्योंकि वो कहते हैं कि चांद हर शाम मुझसे मिलने नहीं आ पाता था। ए क्लाउड समटाइम्स हिड हिज फेस फ्रॉम मी, कई बार बादल उसके चेहरे को मुझसे छुपा लेते थे। तो उस समय पेंटर जो हैं वो खुद अपनी कहानियों को लिखते थे। चलिए अब हम हमारी इवनिंग्स की स्टोरी पर बढ़ते हैं। फर्स्ट इवनिंग, ये पहली इवनिंग का वर्णन जो चांद पेंटर को सुनाता है और पेंटर इस कहानी में बता रहे हैं। लास्ट नाइट आई वॉज कोटिंग द मून्स ओन वर्ड, पिछली रात, यहां पर आई जो है वो लेखक हैं, वो कह रहे हैं कि मैं चांद के शब्दों का वर्णन कर रहा हूं। लास्ट नाइट आई वॉज ग्लिडिंग थ्रू द क्लाउडलेस इंडियन स्काई, पिछली रात आई वॉज ग्लिडिंग, यहां पर आई जो है वो मून है, मून यानी चांद खुद कह रहा है कि आई वॉज ग्लिडिंग थ्रू द क्लाउडलेस इंडियन स्काई, कि मैं उड़ता हुआ, क्लाउडलेस यानी बादल नहीं हो रहे थे, आकाश बिल्कुल साफ था, तो भारतीय आकाश से उड़ते हुए जा रहा था। माई फेस वॉज मिरर्ड इन द वाटर्स ऑफ द गंगाज, और मेरा चेहरा जो है वो गंगा के पानी में, मैं अपने चेहरे की छवि जो है वो देख रहा था। गंगा का पानी मुझे मिरर की तरह यानी आईने की तरह दिख रहा था, जिसमें मैं अपने चेहरे की छवि देख रहा था। एंड माई बीम्स स्ट्रोव टू पायर्स थ्रू द थिक इंटरट्विंग बग्स ऑफ द बनानाज, और वो कह रहा है कि मेरी बीम्स यानी मेरी किरणें स्ट्रोव, स्ट्रोव जो है वो स्ट्राइव की सेकेंड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है कोशिश करना। चांद कह रहा है कि मेरी किरणें कोशिश कर रही थी टू पायर्स, पायर्स करना मतलब होता है भेदना, आर पार होना, थ्रू द थिक यानी मोटी सी, इंटरट्विंग यानी आपस में गुथी हुई, बग्स मतलब होती हैं शाखाएं। तो चांद कह रहा है कि मेरी किरणें कोशिश कर रही थी, केले की जो शाखाएं थी जो आपस में गुथी हुई थी, उनके बीच से मेरी किरणें अपने आप को आर पार करने की कोशिश कर रही थी। आर्चिंग बीनीथ मी लाइक द टॉर्टोइस शेल, मेरे नीचे एक द्वार जैसा, एक धनुष आकार जैसा कुछ आवरण दिखाई दे रहा था, जो टॉर्टोइस शेल यानी कछुए का ऊपरी आवरण था। फोर्थ फ्रॉम द थिकेट ट्रिप्ड अ हिंदू मेड, और फोर्थ मतलब होता है आगे आना, तभी झाड़ियों से ट्रिप्ड यानी तेजी से, हिंदू मेड यानी एक भारतीय युवती आगे आती है। लाइट एज ए गेजल, जो लाइट यानी बहुत हल्की है, एज ए गेजल, गेजल मतलब होता है मृग, हिरण, जो हिरण के समान बहुत हल्की। ब्यूटीफुल एज ईव, ईव की तरह खूबसूरत है। एरी, एरी मतलब होता है बेपरवाह। इथरल एज ए विजन, इथरल मतलब होता है बहुत ज्यादा कोमल। एक युवती बाहर आती है जो हिरण के समान दिखाई देती है, ईव की तरह खूबसूरत है, बेपरवाह है और बहुत ही कोमल है। एंड येट शार्पली डिफाइंड एमिड द सराउंडिंग शेडो, आसपास की परछाइयों के बीच भी चांद कहते हैं कि मैं उस युवती को शार्पली यानी ठीक तरह से डिफाइन कर सकता हूं। स्टूड दिस डॉटर ऑफ हिंदुस्तान, इन शेडोज के बीच, इन परछाइयों के बीच एक डॉटर ऑफ हिंदुस्तान यानी भारत की बेटी जो है वो खड़ी हुई है। आई कुड रीड ऑन हर डेलिकेट ब्रोज, मैं पढ़ सकता हूं उसके डेलिकेट, डेलिकेट मीन्स होता है कोमल, ब्रो यानी मस्तक, उसके कोमल मस्तक पे मैं पढ़ सकता हूं द थॉट, उन विचारों को, दैट हैड ब्रॉट हर हिदर, हिदर मीन्स होता है यहां, जिस विचार से वो यहां आई है उस विचार को मैं उसके कोमल मस्तक पर पढ़ सकता हूं।
द थॉर्नी क्रीपिंग प्लांट्स टोर हर सैंडल्स। थॉर्नी मतलब होता है कटीले, क्रीपिंग प्लांट्स मतलब होता है जंगली पेड़। जो कांटेदार जंगली पेड़ हैं उनकी वजह से उसकी सैंडल्स जो है वो टूट गई हैं। बट फॉर ऑल दैट शी केम रैपिडली फॉरवर्ड, फिर भी वो तेजी से आगे आती है। द डीर दैट हैड कम डाउन टू द रिवर टू क्विंच हर थर्स्ट, जैसे एक हिरण नदी के पास नीचे उतर कर आता है। टू क्विंच, क्विंच करना मतलब होता है बुझाना, थर्स्ट मतलब होती है प्यास। जैसे कोई हिरण भागते हुए नदी के पास आता है अपनी प्यास बुझाने के लिए, वैसे ही ये युवती तेज कदमों से चलकर आगे आई है। स्प्रैंग अप विथ ए स्टार्टल्ड बाउंड, और वो एकदम से चौंक जाती है। फॉर इन हर हैंड द मेडन बोर ए लाइटेड लैम्प, जैसे कि उस मेडन के हाथ में एक जलता हुआ दीपक रहता है, तो उस दीपक को बुझने से बचाने के लिए वो उसे सहारा देती है। आई कुड सी द ब्लड इन हर डेलिकेट फिंगर टिप्स, तभी मैं देखता हूं कि उस कोमल युवती की उंगलियों के पोरों से खून निकल रहा है। एज शी स्प्रेड देम टू स्क्रीन बिफोर द डांसिंग फ्लेम, क्योंकि वो डांसिंग फ्लेम यानी छटपटाती हुई उस लौ को बुझने से बचाने के लिए अपनी उंगलियों से सहारा देती है, तभी उसकी उंगलियां जल जाती हैं और उसकी उंगलियों से खून बहने लगता है। शी केम डाउन टू द स्ट्रीम, वो नीचे की तरफ नदी के पास आती है। एंड सेट द लैम्प अपॉन द वाटर, और उस दिए को पानी पर बहा देती है। एंड लेट इट फ्लोट अवे, और उसे आगे की तरफ बहने देती है। द फ्लेम फ्लिकर्ड टू एंड फ्रो, उस दिए की लौ इधर उधर फड़फड़ा रही है। फ्लिकर्ड करना मतलब होता है फड़फड़ाना, टू एंड फ्रो यानी यहां वहां आगे पीछे। एंड सीम्ड रेडी टू एक्सपायर, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह बुझने ही वाली है। बट स्टिल द लैम्प बर्न्ड ऑन, लेकिन फिर भी वो दिया जलता रहता है। एंड द गर्ल्स ब्लैक स्पार्कलिंग आईज, और उस लड़की की ब्लैक यानी काली, स्पार्कलिंग यानी चमकदार आंखें, हाफ वेल्ड, वेल्ड मतलब होता है घूंघट, आधी ढकी हुई, बिहाइंड देयर लॉन्ग सिल्कन लैशेस, किससे ढकी हुई हैं? लॉन्ग यानी लंबी सी, सिल्कन यानी सिल्क के समान, लैशेस मतलब होती हैं पलकें। उसकी आंखें उसकी पलकों से आधी ढकी हुई हैं। फॉलोड इट विथ ए गेज, और वो गेज्ड मतलब गेज करना मतलब होता है घूरना, और वो उस दिए को घूरती रहती है। ऑफ अर्नेस्ट इंटेंसिटी, बहुत गहरी गंभीरता के साथ वो उस दिए को घूरती रहती है। शी न्यू दैट इफ द लैम्प कंटिन्यूड टू बर्न, क्योंकि वह जानती थी कि अगर दिया जलता रहा, सो लॉन्ग एज शी कुड केप्ट इट इन साइड, जब तक उसकी दृष्टि के सामने वो दिया है और अगर वो जलता रहा, हर बेट्रोद, बेट्रोद मतलब होता है मंगेतर, वॉज स्टिल अलाइव, तो उसे पता चल जाएगा कि उसका मंगेतर जो है वो जीवित है। तो इस उद्देश्य से वो उस दिए को घूरती रहती है, क्योंकि उसका विश्वास था कि अगर वो दिया जलता रहेगा तो उसका मंगेतर जीवित है। बट इफ द लैम्प वॉज सडनली एक्सटिंग्विश्ड ही वॉज डेड, लेकिन अगर अचानक से वो दिया बुझ जाता तो उसे यकीन हो जाता कि उसका मंगेतर जो है वो मर चुका था। एंड द लैम्प बर्न ब्रेवली ऑन, लेकिन वो दिया बहुत बहादुरी से जलता रहता है। एंड शी फेल ऑन हर नीज, वह अपने घुटनों के बल बैठती है। एंड प्रेड, और प्रार्थना करती है। नियर हर इन द ग्रास ले ए स्पार्कल्ड स्नेक, उसी के पास में घासों के बीच से एक स्पार्कल्ड यानी धब्बेदार स्नेक यानी सांप निकल कर आता है। बट शी हीडेड इट नॉट, लेकिन वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देती। हीड करना मतलब होता है ध्यान देना, हीडेड इट नॉट मतलब वह ध्यान नहीं देती। शी थॉट ओनली ऑफ ब्रह्मा एंड हर बेट्रोथ, वो केवल भगवान ब्रह्मा का स्मरण करती है और अपने बेट्रोथ का, अपने मंगेतर का। ही लिव्स, शी शाउटेड जॉयफुली, वह खुशी से चिल्लाती है। ही लिव्स, वह जीवित है। ही लिव्स, वह जीवित है। एंड फ्रॉम द माउंटेन्स द इको केम बैक अपॉन हर, ही लिव्स, और उसकी आवाज जो है पर्वतों से टकराकर प्रतिध्वनित होकर उसी के पास वापस लौटती है और आवाज सुनाई देती है, ही लिव्स, वह जीवित है। ये हमारी पहली कहानी का वर्णन था जो चांद ने पेंटर को सुनाया और पेंटर ने यहां पर वर्णन किया है उसका। अब सेकंड इवनिंग का वर्णन देखते हैं। सेकंड इवनिंग, यस्टरडे सेड द मून टू मी, कल चांद ने मुझसे कहा। आई लुक्ड डाउन अपॉन ए स्मॉल कॉर्टयार्ड, चांद कहता है कि मैंने नीचे की तरफ देखा एक छोटा सा आंगन। सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाय हाउसेस, और वो आंगन सब तरफ से मकानों से घिरा हुआ था। इन द कॉर्टयार्ड, कॉर्टयार्ड मीन्स होता है आंगन, उस आंगन में सेट ए क्लकिंग हैन विथ 11 चिकन्स, एक मुर्गी
क्लकिंग मतलब होता है मुर्गी की आवाज। एक आवाज करती हुई मुर्गी अपने 11 बच्चों के साथ बैठी हुई थी। एंड अ प्रिटी लिटिल गर्ल, और एक बहुत सुंदर सी छोटी बच्ची, वॉज रनिंग एंड जंपिंग अराउंड देम, उनके सब तरफ भाग रही थी, उछल रही थी। द hen was frightened, ये देखकर मुर्गी जो है बहुत डरी हुई थी। एंड screamed, और चीखती है। एंड spread out her wings, और अपने पंखों को फैलाती है। over the little brood, brood मतलब होता है बच्चे, अपने बच्चों के ऊपर वह अपने पंखों को फैला लेती है उनको बचाने के लिए। Then the girl's father came out and scolded her, तभी उस लड़की के पिता बाहर आते हैं, और scolded करना मतलब होता है डांटना, और उसे डांटते हैं। एंड आई ग्लेडेड अवे, और मैं वहां से वापस आ जाता हूं। एंड थॉट नो मोर ऑफ द मैटर, और उस विषय में आगे कुछ नहीं सोचता। यानी चांद कहते हैं इतना देखकर मैं वहां से आ गया और इसके बाद मैंने उस विषय में कुछ नहीं सोचा। बट दिस इवनिंग, लेकिन आज की शाम, ओनली अ फ्यू मिनट्स एगो, कुछ ही मिनटों पहले, आई लुक्ड डाउन इनटू द सेम कोर्टयार्ड, मैंने उसी वरामदे को फिर से देखा। एवरीथिंग वाज क्वाइट, वहां सब कुछ शांत था। बट प्रेजेंटली, लेकिन अभी, द लिटिल गर्ल केम फोर्थ अगेन, वो छोटी लड़की फिर से आगे आई। क्रेप्ट क्वाइटली टू द hen हाउस, और धीरे से रेंगते हुए मुर्गी के घर में चली गई। पुश्ड बैक द बोल्ट, पुश्ड बैक द बोल्ट, बोल्ट मतलब होता है चटकनी, चटकनी को वापस लगाया। स्लिप्ड इनटू द अपार्टमेंट ऑफ द hen एंड चिकन, और मुर्गियों के अपार्टमेंट में वो प्रवेश कर गई। दे क्राइड आउट लाउडली, ये देखकर मुर्गी और उसके बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे। एंड केम फ्लटरिंग डाउन फ्रॉम देयर पर्चेस, पर्चेस मतलब होता है मुडेर, जो पक्षियों को बैठने के लिए बनाई जाती है। उस लड़की को देखते से ही मुर्गी और उसके बच्चे जो हैं फड़फड़ाते हुए नीचे की तरफ उतर कर आते हैं। एंड रैन डाउन इन डिस्मे, और निराशा में यहां वहां भागने लगते हैं। एंड द लिटिल गर्ल रैन आफ्टर देम, और वो लड़की उनके पीछे पीछे भागने लगती है। आई सॉ इट क्वाइट प्लेनली, चांद कहता है कि ये सब मैंने बहुत स्पष्ट तौर पर देखा। फॉर आई लुक्ड थ्रू ए होल इन द hen हाउस वॉल, और ये सब मैं कहां से देख रहा था? hen हाउस के वॉल यानी दीवार में एक छेद था, उस छेद से अंदर का मैं ये सारा दृश्य देख रहा था। आई वॉज एंग्री विद द विलफुल चाइल्ड, चांद कहता है कि मैं बहुत नाराज था उस विलफुल यानी जिद्दी लड़की से। एंड फेल्ट ग्लैड, और मुझे बहुत खुशी हुई। व्हेन हर फादर केम आउट एंड स्कोल्डेड हर मोर वायलेंटली देन यस्टरडे, और मुझे बहुत खुशी हुई जब उस लड़की के पिता बाहर आए और उसे कल से भी ज्यादा हिंसात्मक तरीके से डांटा। होल्डिंग हर रफली बाय द आर्म्स, बहुत सख्ती से उसकी भुजा को पकड़ा। ही हेल्ड डाउन हर हेड, और लड़की अपना सिर झुकाकर खड़ी हुई थी। एंड हर ब्लू आईज वर फुल ऑफ लार्ज टीयर्स, उसकी नीली आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। What are you about here? उसके पिता पूछते हैं तुम यहाँ क्यों आई? He asked, ऐसा उनका सवाल होता है। She wept and said, तो वो लड़की रोते हुए कहती है, I wanted to kiss the hen and beg her pardon for frightening her yesterday, कि मैं यहाँ मुर्गियों से माफी मांगने के लिए आई थी कल रात उन्हें डराने की वजह से। कल मैंने उन्हें डराया था जिसकी माफी मांगने के लिए मैं यहाँ आई। बट आई वॉज अफ्रेड टू टेल यू, लेकिन मैं डरी हुई थी कि मैं आपको कैसे बताऊं। इतना सुनकर उसके पिता जो हैं उस इनोसेंट चाइल्ड की बातों को सुनकर बहुत प्रभावित होते हैं और उसकी गलती को माफ कर देते हैं। ये हमारी सेकेंड इवनिंग का वर्णन था जो चांद के द्वारा पेंटर को किया गया। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेसन ठीक से समझ में आया होगा। सो बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।